तो इतनी ताकत भी नहीं बची कि घर घर जाके कुछ मांग के खा सकूं। ना जाने कितने दिन हो गए इस सड़क से कोई परिंदा तक नहीं गुजरा। सुना है कोई बीमारी फैली हुई है, पर हम तो इस बीमारी के बिना ही मर जाएंगे। या साहब, कुछ भी दे दीजिए ना साहब, बहुत दिन हो गया कुछ नहीं खाया साहब, कुछ भी दे दीजिए ना साहब। उठ यहाँ से, तुम लोगों की वजह से कोरोना फैल रहा है यहाँ पे। उठ, मास्क कहाँ है तेरा? मत मारिए साहब, अब बस जान ही बची है। 3 दिन हो गया कुछ भी नहीं खाया साहब, शरीर में बिल्कुल जान नहीं है साहब। पहले तो लोग इधर उधर दिख जाते थे, कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता था साहब, उम्मीद रहती थी कि खाना मिल जाएगा साहब। पर अब इस बीमारी के चलते हुए वो उम्मीद भी टूट चुके हैं साहब। पूरा शहर सुनसान हो गया है साहब। घर घर जाता हूँ खाना मिलने की उम्मीद में, पर वहाँ या तो भगा देते हैं या तो दरवाज़ा ही नहीं खोलते साहब। वहाँ वो नाली देख रहे हैं ना साहब, वहाँ से पानी पीकर मैं रोज़ गुजारा करता हूँ साहब। अब आप ही बताइए साहब, जब अपना पेट भरने की औकात नहीं है मेरी, मास्क कहाँ से लाऊंगा साहब, कहाँ से लाऊंगा मास्क। बहस मत कर मेरे से, अभी और मारूंगा। निकल यहाँ से, निकल। ओए क्यों मार रहे थे उसको? क्या गलती है उसकी? सर, मास्क नहीं पहना था और बहस कर रहा था। अरे इन लोगों के पास तो खाने के पैसे नहीं, ये लोग मास्क के पैसे कहाँ से लाएंगे? लेकिन सर, सॉरी सर। अच्छा सुनो, ये लो कुछ पैसे, इनके लिए कुछ राशन और ये मास्क खरीद के इन्हें ला कर दे दो। जी सर। कोरोना ने ज़िंदगी में मुश्किलें तो लाई हैं काफ़ी, पर इस घड़ी में भी बहुत ऐसे भी लोग हैं जो आज भी समाज के लिए काम करते हैं। समय के साथ लोग भी बदले, कुछ अच्छे हुए, कुछ बुरे। कोरोना ने कई दुख और समस्याएं लाई हैं, पर लोगों में परिवर्तन कर दुख भी बांटने का सहारा दिया। आप और हम तो अपने घरों में सुरक्षित हैं, लेकिन इस लाचार की तरह उन 1000 लोगों का क्या जो इस समय में भी आपकी दया और दरियादिली की वजह से जिंदा हैं। I wonder why we are still up at this hour. Maybe because we are used to staying up late till early morning. What is strange is the fact that I'm so tired but still not able to fall asleep. My mom says if someone is thinking about us, we're unable to sleep. How funny isn't it? Because someone is thinking about 3 of us at the same time. Maybe our faculties are evaluating our assignments and wondering why do we have similar answers in our assignment. So, can I help you in any way? Yes ma'am, would you like to buy our phenyl and bleaching powder? The company where I worked suddenly closed down, so it would be of great help if you will buy anything. Sure, follow me. What are you selling? I have come to sell phenyl and bleaching powder ma'am. Would you like to buy anything? You said phenyl? I think I need it. Okay ma'am, I'll be there in a moment. Please give me 2 packets of bleaching powder and 1 bottle of phenyl. Don't worry ma'am, the quality is really good, and thank you again for buying. How much for a packet of bleaching powder? Only for 25 rupees ma'am, and the quality is really good, and for 1 bottle of phenyl it is 30 rupees. Well, then give a bottle of phenyl and a packet of bleaching powder. Would you like to buy another packet of bleaching powder? I'll give you 2 packets of bleaching powder for 45 rupees. I told ground floor uncle to buy some bleaching powder. Hear that? While on your way outside, a person in the ground floor will buy from you, and I hope many others will. Thank you for selling your products here, and no need for the extra discount. Sell them at the price you want to sell. Thank you so much ma'am for buying. Also it's because of people like you all that we are able to eat daily. Thank you so much. I'll remain grateful forever.
Also, stay safe, ma'am. Well, thank you very much. Yes, what are you selling? Ma'am, I have phenyl and bleaching powder. Would you like to buy some? I just need a bottle of phenyl. Oh, wait. Yes, please. Thank you. What is this, ma'am? Oh, this is a liquid disinfectant. Like, your products might be contaminated with viruses and germs, and this liquid cleanses them all. Sure, sir. I will. And thank you so much, sir. See, these are really difficult times. So everyone should clean anything and everything they bring inside their home with this. For extra protection, what I would like to recommend to you is that you should start selling sanitizers and disinfectants like these at these times, because people really need them. And you might even get better sales or even a higher margin of profit. हेलो मैडम, मैं एक्सपर्ट कंपनी से हूँ। हमारे पास एक पॉलिसी है जो आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी हर जगह कोरोना फैला हुआ है, हम अपने घर में किसी को एंट्री नहीं देते हैं। कोई बात नहीं मैडम, मैं समझता हूँ। मैं आपको बाहर रहकर ही समझा देता हूँ। हमारी कंपनी भी सैनिटाइजर की पूरी ध्यान रखती है। नहीं भैया, अभी कुछ नहीं चाहिए। सर, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? नहीं भैया, इधर कुछ नहीं है। अब पता नहीं क्या होगा। एक तो जॉब बड़ी मुश्किल से लगी और फिर ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अब पता नहीं मैं बॉस को क्या जवाब दूंगा। अब ना तो घर चलाने के पैसे हैं मेरे पास और ना ही जॉब की गारंटी है। पता नहीं ये घर कैसे चलाऊं, बच्चों का स्कूल, बच्चों का खाना, कहाँ से लाऊं पैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कोरोना हमारी जान ले या ना ले, ये पैसों की कमी और भूख ज़रूर ले लेगी। हम तो फिर भी सह लेंगे, पर हमारे बच्चे कैसे होगा ये सब कुछ? ना धंधा ना कुछ। मैं बर्तन भी मांज लेती, उससे भी कुछ हद तक पैसे आ जाते, लेकिन कोई घर में घुसने ही नहीं दे रहा। हमारा तो फिर भी 4 दिन चल जाता, लेकिन ये बच्चे कैसे भूखे रहेंगे? पहले तो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती थी, अब तो 4 दिन बाद मुश्किल से कुछ खाने को मिल रहा है। यहाँ सब ऐसा ही होता है। देश में कोई भी मुश्किल आ जाए, हम गरीब को ही भुगतना पड़ता है। वहाँ अमीर और नेताओं को कुछ हो जाए, पूरा देश बोलने लगता है, दुआएं मांगने लगते हैं। यहाँ गरीब के बच्चे भूखे हैं, किसी को नहीं पड़ी। अभी भगवान ही कुछ कर सकते हैं। माँ, कुछ खाने को दो ना, बहुत भूख लग रही है। हाँ माँ, कल से कुछ भी ठीक से नहीं खाया, बहुत जोर की भूख लगी हुई है। हाँ बच्चों बैठो, मैं अभी देती हूँ। बच्चों, अभी के लिए तो बस यही है, दोनों आधा आधा बांट के खा लो। इस पैंडेमिक सिचुएशन में इन लोगों को हमारी बहुत ज़रूरत है, इसीलिए
हम लोगों को आगे आकर इन लोगों की हेल्प करनी चाहिए। घर पे रह के भी हम मदद कर सकते हैं। With all the safety measures taken, it's our duty to have some empathy towards the people working day and night. घर पे रोज़ वो आपके काम किया करते थे और ज़रूरत वक्त में हमने ही साथ छोड़ दिया। आपकी तरह उनका भी परिवार है, तो चलिए उन्हें सैनिटाइजिंग के बारे में बताते हैं ताकि वो भी अपना काम पूरी स्वच्छता के साथ कर सकें। Pandemic is not always cool and spending quality time for everyone. The government does whatever possible, but it's we who have to lend hands to help them in maximum way possible.